Good morning, my dear student. Today we start new topic of the maths, lesson number 1, irrational number. So आज हम लोग irrational number को प्रूव करना सीखेंगे. You prove that root 3 is an irrational number. Irrational number. तो चलो देखते हैं. So we prove root 3 is a irrational number by contradiction method. Contradiction method means against, किसी भी चीज के against जाके किसी को prove करना, that is a contradiction method. So we let root 3 is a rational number. Is a rational number. Let कर लिया कि root 3 क्या है? rational number है. अगर रेशनल, if root 3 is a rational number, then we can write root 3 equal to P upon Q, where P and Q are co-prime. Co-primes. P and Q क्या है? Co-primes. Co-prime means P and Q have no common, or you can say P and Q have SCF is 1. So now next topic is squaring on both sides. Squaring on both sides, we get 3 equal to P square upon Q square. Therefore, P square equal to 3Q square. This is equation number 1. It means P square equal to 3Q square. It means P square is divisible by 3. Reason is this: P square का 3 क्या है? 3 एक फैक्टर है किसका? P square का. तो 3 इसको पूरा डिवाइड करेगा. सो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 और P इज डिविजिबल बाई 3. सो देयरफॉर वी लेट P इक्वल टू 3m. P इज डिविजिबल बाई 3, so we let P equal to 3m, where m is any integer, कोई भी एक integer. So now putting the value of P in first equation, we get 3m whole square equal to 3q square, that is a 9m square equal to 3q square. So 3 3s are 9. Then we can write q square equal to 3m square. So q square equal to 3m square. So we can say that q square is divisible by 3, or q is divisible by 3. So that is a equation number. That is equation number first, second, and that is a this is a second number, and that is a third. So from second and third, अगर हम सेकंड को देखें तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में तो लिखा है P is divisible by 3. Now here Q is divisible by 3. It means 3 is a common factor of P and Q. From second and third, 3 is a common
factor of P and Q, but it is not possible. Reason why it is not possible? Since P and Q are co-prime number, but it is not possible since P and Q are co-prime numbers. ये कैसे नंबर है? co-prime numbers. So therefore our supposition is wrong. इसका मतलब ये सपोजिशन क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया. हमने क्या लेट किया था कि √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है. सो देयरफॉर √3 इज अ इरेशनल नंबर. वंस अगेन, √3 क्या है? इरेशनल नंबर है. प्रूव करना था हमको, बट हमने बाई कंट्रडिक्शन मेथड से लेट कर लिया कि √3 इज ए रेशनल नंबर. If √3 is a rational number, तो any rational number we can write in form of P upon Q. So √3 equal to P upon Q, where P and Q are co-prime. Co-prime means वो number जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है. So squaring on both side of this equation, we get 3 equal to P square upon Q square. Then you cross multiplication, then P square equal to 3 square. That is equation number 1. So P square is divisible by 3. Since 3 is a factor of P square, so P also be divisible by 3. That is a second number. So we can let P equal to 3m. M is any integer. So putting the value of P in equation number 1, we get 3m whole square equal to 3q square. So 3m whole square means 9q, 9m square equal to 3q square. 3 से 9 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा q स्क्वायर. तो q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर. तो हमने यहाँ क्या नोटिस किया? जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था इक्वेशन में, सेम हमने यहाँ भी देख रहा हूं. सो 3q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3. सो q इज आल्सो बी डिविजिबल बाई 3. सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड हमारा क्या था? ये सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 3 is a common factor of P and Q, but it is not possible. Why? Since we already learned that P and Q are co-prime numbers. So our supposition is wrong. Therefore, √3 is a irrational number. So pause the video and note it down. Next topic is a terminating and non-terminating repeating decimal expansion. तो इस टॉपिक में क्या सीखना है? इसमें हमको ये सीखना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ टू फाइंड एनी डेसिमल एक्सपेंशन इज ए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो उसके पहले फर्स्ट यू लर्न व्हाट इज ए टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मीन्स व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर टू अदर नंबर द रिमाइंडर इज 0. एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मीन्स we will not get remainder is 0 but recurring, बार बार सेम रिमाइंडर आना, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. तो चलिए शुरू करते हैं कि बिना कैलकुलेट किए कैसे पता करेंगे ये टर्मिनेटिंग है नहीं. वन एग्जाम्पल, सपोज 3 upon 10. तो 3 upon 10 you can say that yes, that answer is 0.3. And another number you will see 5 by 25. Then 1 upon 5. Rational number. First we change in rational. Rational means in pure form. No common number between numerator and denominator. So just you can write 0.2. Another number 1 by 4. Then 1 by 4 means 0.25 we can write. One more 1 by 20.
तो 1/20 मीन्स 0.05 0.05। तो इनमें क्या नोटिस किया हम लोगों ने कि इसका डिनोमिनेटर क्या था 10, नाउ डिनोमिनेटर इज 25, डिनोमिनेटर इज 4 एंड डिनोमिनेटर इज 20। इस 10 के अगर हम लोग फैक्टर करें तो मुझे मिलेंगे 2 इंटू 5। इस 25 के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा 5 इंटू 5। इस 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2। इफ यू फैक्टर 20 देन 2 इंटू 2 इंटू 5। बट वेन वी राइट 1/15, अगर हम लोग 1/15 लेते हैं या 4 कोई भी नंबर 1/15 या 4/15 या समथिंग, देन व्हाट विल गेट। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं। 15 का डिवाइड 4 में करना है। सो 0 डेसिमल 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, we get 0 1 1 second 0, 6 time 10, 1 second 1 0। तो क्या नोटिस कर रहे हैं कि मुझे रिमाइंडर बार बार रिपीट होने लगा। अभी मेरे रिमाइंडर क्या है 10, यहां भी 10, यहां भी 10। सो विच टाइप ऑफ दिस 0.2666 डॉट डॉट लाइक दिस 0.2666 ऐसे नंबर जिन जो रिमाइंडर तो उनका 0 नहीं आया, लेकिन हमारे पास जो क्वोशंट में आ रहा वो एक डिजिट 666 चलने लगी जो रिपीट हो रही है। इट मींस दैट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हुआ, टर्मिनेट मीन्स रिमाइंडर 0। सो दिस नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब वन मोर थिंग, सपोज दैट दिस नंबर इज 12 upon, one more example, 12/15 is there, सपोज दैट। और मैंने जैसे बोला कि जब आप कब चेक करना है, जब ये नंबर पूरी तरह से रेशनल होगा। और रेशनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो क्या है कि नो कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने ध्यान नहीं दिया और आपने इसका डिवाइड करना शुरू किया। सो जरा देखते हैं अब क्या होगा। अब आपने जब डिवाइड किया तो डेसिमल 0, तो आंसर क्या आ गया, ये रिमाइंडर। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग हो गया, दैट इज ए टर्मिनेटिंग। लेकिन आपके दिमाग में क्या रहा कि 15 के मुझे फैक्टर करने हैं, तो 15 के फैक्टर हो गए 5 इंटू 3 और यहां 3 आ गया, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सो यू रिमेंबर दैट व्हेन यू डू क्वेश्चन, फर्स्ट यू सी एनी कॉमन नंबर इज देयर, फर्स्ट यू रिमूव दैट। पहले उसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि इस नंबर में 15 का जो मेरा फैक्टर था वो 5 इंटू 3 था। सो व्हाट इज द डिफरेंट इन दैट, यहां से देखो फिर से एक बार कि यहां पे 2 है, 5 है, दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग। ओनली 5 दैट इज आल्सो बी टर्मिनेटिंग। 2 number that is also be terminating. Both 2 and 5 that is a terminating, but 3 is included, so that is not a terminating, that is a recurring, non-terminating recurring. तो क्या बनता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में मुझे मिले तो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकूं। तो डिनोमिनेटर का फॉर्म क्या है 2 की पावर m और 2 की पावर 5 की पावर m और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ये 3 केस हमारे पास हैं। अगर किसका डिनोमिनेटर ओनली, यू राइट हियर ओनली, केवल 2 की पावर m की फॉर्म में, जैसा यहां है, जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या है 2 की पावर 2 है, ये क्या है 5 की पावर 2 है। यहां पर भी हमने क्या देखा कि 2 की पावर 2 इंटू 5 था यहां पे। तो इन क्वेश्चनों में क्या देख रहे हैं कि केवल ओनली 5 है तब भी है टर्मिनेटिंग है, केवल 2 आ गया तब भी टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 दोनों आ गए तब भी टर्मिनेटिंग है, और लेकिन जैसे ही इंक्लूड हो गया 3, दैट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग। सो यू रिमेंबर दैट व्हेन यू सॉल्व एनी क्वेश्चन, फर्स्ट यू फैक्टराइज इट्स डिनोमिनेटर, बिफोर दैट यू चेक
your rational number in simplest form or not. If not, then you simplify that. Then you find the factors of denominator. If your denominator in form of 2 की power m or 5 की power m or 2 की power m into 5 की power n, then your decimal expression is a terminating or non-terminating. Understood all of you? Okay, thank you.